Welcome to another episode of Curious Case. Audio again a little wobbly because both of these episodes were recorded together. But mysteries, super mystical, mystical. We will give you 3 plot lines of real life events. You have to tell us ये क्यों हुआ होगा? What must have happened here? First, the curious case of a successfully failed hotel. Second, the curious case of an unexpected guest. And lastly, the curious case of an unplanned marriage. Chalo, let's get into solving these mysteries now. This curious case is about how a group of hotels, having stopped taking reservations from the general public, discontinued all luxury services, replaced the fancy interiors with cheap furniture, yet managed to be the most profitable during that time. What time is it about? ये नहीं पता मुझे. That मेरे I को can't लगता है say. कि ये कोविड वाला टाइम नहीं था Oh, कि जब maybe hotel became hospital हाँ in COVID. हाँ है ना? क्योंकि most profitable तभी हो जाएगा, सारा cheap होता है. चीप क्यों नहीं प्रॉफिटेबल था और चीप लगाना था क्योंकि उनको बढ़ाने थी सारी चीजें और reservation भी नहीं. रिजर्वेशन ले नहीं सकते थे Very obvious answer, but no. Oh नहीं. थोड़ा टाइम में पीछे जाओ. और पीछे क्लोज हो बट नॉट I एग्जैक्टली have a- के वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की चीजें ज्यादा पीछे तो नहीं चलेंगे हम. Okay. In World War II, this hotel was converted into hospital. नहीं शी इज राइट, यू आर नॉट राइट. अच्छा शी वाज बैंग ऑन राइट. अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 की बात है. ओ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की Oh, बात है so basically Jewish लोग just the armies अच्छा were allowed to stay in this stay, hotel. हाँ. It was used as a place for army to stay. हम्म. So सारे luxury वगैरह हटा दिया है, हम्म. reservations बंद कर दी गई हैं for general public, and government was paying for this hotel, so that's how it became profitable. ऑलमोस्ट राइट. वर्ल्ड वॉर 2 हम्म आर्मी के लिए हाँ. बेड्स बना दिए गए. हम्म. ठीक है. नाउ जस्ट फॉर फन, ओके, नाउ वी विल गेस which place this was, because when we think of World War 2 we go to the Germany side Germany, वगैरह, हम्म. but this is India and this group of hotels luxury space में आज I think the only you know city to participate in World War II was Chennai. हाँ मैंने भी एक देखा था सो ब्रिटिश आर्मी के ट्रूप्स तो थे ही हाँ, ना वर्ल्ड वॉर के हाँ, बाद. तो हाँ, इंडिया हाँ. में बहुत जगहें थी ऐसी. अच्छा. पर ऐसी तुम लग्जरी ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम देते हैं. Oberoi. This was Oberoi and this was in Calcutta at that time. And Mohan Singh Oberoi, who was the owner of Oberoi, he made accommodation for British Army कि आप यहाँ आके रुक जाओ. And 1500 बेड्स उन्होंने वहाँ बना दिए उनके लिए. नॉर्मली अगर आर्मी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती तो सोल्जर से 12 रुपए पर डे लेते थे, बट ओबरॉय जी ने 10 रुपए पर डे में कर दिया. एंड विद सो मेनी सोल्जर्स staying, it all became like it was good revenue instead of being on And a loss. loss. Yes. You know मेरा second guess क्या होने वाला था हाँ. कि the hotel was not working out. The hotel was converted into a haunted house for entertainment. Oh. सारा cheap furniture वगैरह लगा के, हम्म. no reservations, and that how it became popular in entertainment industry. That's as not a movie bad set. idea. हाँ So that was supposed to be my second guess, but before that, the case was I closed. know the case is closed, and now I want to visit this Oberoi in Kolkata. हाँ. This is where World War 2 के काफी soldiers stayed. हाँ. Iconic story. The case is Closed. The curious case occurred in 1910 when an unexpected guest made headlines when it visited one of the world's most famous landmarks. What was this guest and why did its visit make people nervous? ठीक है Oh. Wow. Looks like an alien to me. My first thought is an alien came to Stonehenge and something happened. देखो मेरी हिस्ट्री की डेट से 1910 1911 इज द टाइम व्हेन इंडिया की कैपिटल चेंज्ड. आई थिंक इट इज आल्सो द डेट जो गेटवे ऑफ इंडिया में ऐसे लिखी हो. तो क्या अच्छा गेट ऑफ इंडिया मेरे को लग रहा है कि महात्मा गांधी उस टाइम पे तो थे हम्म. हाँ. तो वो अनएक्सपेक्टेडली बकिंगहम पैलेस में पहुंच गए वहाँ पे डांडी मार्च करवा दिया हमने. और जहाँ घबरा गए. डर लगा अरे ये क्या हो उनको लगा भाई ये पता नहीं क्वीन गो बैक ऐसे ना.
Oh no. So was it महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ है? No. No. Adolf Hitler. हम शायद ग्लोबल स्केल पे की देख रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड्स most. हाँ, तो और वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस लैंडमार्क इजिप्ट Eiffel Tower. मुझे तो पिरामिड्स लगते हैं. पिरामिड. यहाँ पर वहाँ पे कोई ऐसे क्यों पहुंचे? क्योंकि वही अनएक्सपेक्टेड रहेगा ना, कोई आ भी जाएगा. अनएक्सपेक्टेड गेस्ट. पिरामिड. 1910 में who was the sensational guest? मतलब गेस्ट फेमस है. Okay. हाँ, maybe guest ना हो. Guest could be even an animal. हाँ, इट इज जैसे लिखा है ना. for example, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ओके hear me out. कई बार ऐसा होता है कि a species of animal is thought to be extinct, लेकिन somehow on the camera it gets captured once again, and then that makes it headline कि भाई this was not extinct, here it is, मिल गया हमें एक और इसका ऐसा कुछ. And I'm sorry, you are wrong. कितना अच्छा प्लॉट था ये. बहुत अच्छा था. क्या ये कोई घोस्ट से रिलेटेड है? No. I'm इतना मजा curious. The line is कोई it, हिंट चाहिए तो मेरे को बताना. when it visited one of the world's most. हाँ. It guest को तो वो ऐसे बोलते हैं ना. When हाँ. Oh, it. When it visited. Now you're going into right direction. कोई रोबोट विजिट कर गया क्या 1910 में? क्या कोई मीटियोर वो गिर गया क्या? What if it's something related to ऐसा cosmos Space से event? related. कोई एक comet हो which was not supposed to come that year but then it came that year. और लैंडमार्क पे गिरा वो आसपास. गिरा नहीं, बस उसके हाथ से निकल के गया होगा इन सम फोटो वगैरह. देखो तुम इस बारे में रॉन्ग हो, लेकिन यस ये एक इवेंट है, कॉस्मोस इवेंट नहीं है. Oh, Okay. some event he said. कॉस्मोस इवेंट नहीं है. What was this guest? look है, पता है ऐसा भी नहीं लिखा who was this guest. हम्म. What was this guest? भाई मुझे लगता है पिरामिड्स के ऊपर बारिश हो गई होगी. क्या मत सोच रहे नहीं, मैं. वहाँ बारिश नहीं होती क्या फिर? भाई वहाँ पे मेरे ख्याल से पूरी रेगिस्तान है. आई डोंट थिंक देयर इज रेन ओवर देयर. Artificial rain on pyramids. आर्टिफिशियल नेचुरली हो गई होगी. Natural rain on pyramids. सॉरी, तो लॉस्ट ही हो गया. यू आर रॉन्ग. जतन है नहीं, घों पे let's try to go नहीं. towards the landmark. Eiffel अच्छा. Tower. Yes, the landmark is correct. Okay, Eiffel Tower. Lightning. Sorry, lightning नहीं है. Okay, Okay, ठीक है. But yes, you are very close. Rain. Oh, मिला दो उनको. lightning और rain. Storm. Exactly. तो स्टॉर्म 1910 में स्ट्राइक करा था आईफिल टावर पे और बहुत ही ज्यादा बहुत तेज था. लोग बिल्कुल ऐसे वहाँ का क्या कहते हैं, सबको लग रहा था कि ये गिर जाएगा अभी ये. ओह. सब डर गए थे एकदम से. तो वहाँ का क्या कहते हैं सारे ऑर्गेनाइजर हैं जो यहाँ पे मेंटेन रखते हैं, हाँ. सब डर गए थे और गेस्ट वगैरह उस टाइम पे सब डर गए थे. तो वाह. बहुत तेज, वो बहुत ही रेयर इवेंट था. Wow, कितना तगड़ा storm. बहुत They तगड़ा. felt कि पूरा Eiffel Tower अंदर उभर के वो. उड़ जाएगा. Oh. Wow, 1910 में unexpected guest. Storm. Storm. The guest literally stormed into. Yes, ये तो एकदम. Eiffel Tower. Yes, it made us brainstorm. हाँ, और आईफिल टावर का डिजाइन ऐसा था कि वो विंड्स वगैरह में खड़ा रह सके. हाँ. लेकिन उस टाइम पे वो था कि भाई उनको लगा कि भाई अब ये गिर सकता आपका है. गया. हाँ. और शायद 1880s या 1890 में वो बना है, तो Yes, आई थिंक yes, 20 साल 20 पुराना ही साल, है. हाँ. तो इतना ना लोगों को आदत भी नहीं है कि भाई क्या होएगा इसके साथ. Yeah. My God, so is your case closed? Yes, this curious case is closed. Closed. Curious case is, in 1959, a man and woman got married, but only the woman was declared married. Why? जो मैन था उसने अपनी प्रीवियस वाइफ से डिवोर्स ना लिया हो तो नहीं. मैरिड नहीं था वो. नहीं. मुझे लग रहा है मैन ना कहीं और ही है. हाँ, जैसे मैन और वुमन स्पेस में, या फिर ही हाँ जैसे स्पेस में. फिर शादी कैसे हुई थी? क्या उसने किसी एनिमल या किसी से पेड़ से शादी तो नहीं कर ली थी? पहले होता था ना. How do you know gender of the pair is the man? अरे उसने मान लिया होगा, पेड़ से शादी करवा देते ना. अरे लिखा हुआ है मैन एंड वुमन गॉट मैरिड. मैं बताऊं, Ronnie is quite close in the sense कि this is some
because of some ritual, the woman was declared married, but it is not like a paid or animal, proper एक human being इंसान है. ही है. But because of some ritual, he Ritual. said women was considered married. Hmm. 59. क्या ये मतलब हिंदू रिचुअल से रिलेटेड है? नहीं नहीं, अच्छा मतलब एनीवे अच्छा हाँ, ये हाँ. ओ, अच्छा रिचुअल्स नहीं सोचने हमें. हाँ मैं तो उसमें चली हाँ, गई थी. एक नहीं, ने मैं आई वही डू बोल- बोल दिया, एक ने आई हाँ. डोंट बोल दिया, और हाँ. फिर Hmm. I really think the man was like in space or in some other country, और फिर ओ किसी कंट्री के लॉ के हिसाब से हाँ. वुमेन वाज मतलब कंसिडर्ड मैरिड और मेन का नहीं होगा. नहीं नहीं, this situation is based in India. 1959 पे चलते हैं. ये कोई बाबा से रिलेटेड तो नहीं है कि किसी ऐसे गुरु या उससे उसने कर लिया हो शादी. वो नहीं था बट पर वो- Not Baba, but some famous person फ्रॉम was फेमस. involved. ओके. Oh, 1959. मैं तो ऐसे बोल रही थी कि एक अंडर एज था, एक नहीं था. वो हमने क्या ये हमने- कोई हमने एक्टर एक- तो नहीं था? जैसे भाई मेरे को देव आनंद पसंद है, मैंने कर ली शादी पर मतलब खुद से मान लिया. ओह, हाँ. नहीं नहीं, खुद से नहीं मानने वाली बात है इसके अंदर. उन्होंने रिचुअल शादी करी मैं थी. बताता हूँ. निपुण जी का आ रहा है हाँ, कुछ. नहीं, okay. मैं तो बोल रही हूँ ओम शांति ओम प्लॉट, जिसमें शांति प्रिया की शादी हो चुकी थी विद क्या नाम था उस गाय का, अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर था, बट हाँ. अर्जुन रामपाल की शादी नहीं हुई थी क्योंकि हम्म. ही इज अ पब्लिक फिगर एंड ही कुड नॉट एडमिट. नहीं, He was married. and Shanti Priya also could not admit that they were public figures. They could not admit that they are married, क्योंकि शांति प्रिया, मैं तो प्लॉट में ही चले गई मूवी, क्योंकि शांति कुछ प्रिया ऐसा ही अगर लग रहा है, मैरिड इसकी होती, शक्ल ऐसी लग- एक्ट्रेस मैरिड होती हाँ. तो उसको फिल्म्स मिलना बंद हो जाती हैं. Absolutely wrong. ओह, मैं इतनी खुश हो गई, इतना इसने हाइप करा ना. ओह. मेरा रिएक्शन से पहले ही निकल आप गया. तो यूं करने वाले थे. बट कोई फेमस Famous कोई बंदा है. एक्टर था. क्या So वो मैं बताता हूँ. एक hint. The man got married, but was even unaware कि उसकी शादी भी हो गई है. क्या ये कोई बच्चा था नहीं नहीं. जिसकी सोते सोते नहीं, बाल विवाह वाला. Proper man. पर उसको पता नहीं लगा उसकी शादी. हाँ, ओके उसको ओके पता ओके नहीं लगा. ओके. इज दिस बिहार? वहां पे क्योंकि किडनैप करके आदमियों को शादी करते हैं और वो ड्रंक या बेहोश होगा, उसकी शादी हो गई. हाँ नहीं. हाँ, तो उसमें फिर दोनों को डिक्लेयर कर देते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा है. ओके. इसमें बेसिकली द मैन एंड वुमेन unknowingly did something which meant in girls culture उसकी शादी मान जाएगी, लेकिन मैन क्योंकि वो तो सिर्फ unknowingly कुछ कर रहे थे. That sounds She got really pregnant. नहीं 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 नहीं. That sounds really नहीं, something very unknowingly, very publicly. yeah, okay, APH is still a family friendly show. हाँ. नहीं, वो किसी मंदिर वगैरह में चले गए हैं कि उनकी वहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ एक एक्शन हुआ. क्या क्या उन मतलब एक्सीडेंटली उसके माँ में सिंदूर भर दिया. क्या वो बच्चे बच्चे थे रंगोली बना रहे थे और लाल रंग. I'll tell you, Jatin is so close कि क्या? एक्सीडेंटली क्या हुआ होगा गलती से. होली पे रंगो. नहीं 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 नहीं, सिंदूर वगैरह नहीं है, लेकिन समथिंग एल्स जो भी हम नॉर्मल शादी में करते ओ, हैं. वरमाला डल गई होगी आदमी से वो. हाँ, तो द मैन was basically, there's some more to solve to it. हाँ. The man was welcomed by a garland. पॉलिटिशियन था क्या? was welcomed by a garland. Yes. The man was a politician. So the man was welcomed by a garland, and in reciprocation, man also gave the garland to the girl. Oh. And the girl's culture, it's called a marriage, but man was not even aware उसकी शादी हो गई. Just for bonus points, who was this man? Oh my god. और फिर क्या हुआ? I'll give you more details. Politician I don't want to 1959 go का. there. 1959 में हाँ, कोई famous. जवाहरलाल नेहरू. You are right. Oh. So, Prime Minister of that time was invited to inaugurate a dam. Prime Minister Jawaharlal Nehru inaugurated the Panchayat Dam on the Damodar River. Budni Manjia from Santoli welcomed him. Budni garlanded Nehru, who reciprocated by garlanding her. वापस. Now, village elders in Karbona claimed that her garlanding Nehru constituted a marriage. उन्होंने बोल दिया, as a result, she was banished from her village for marrying non-Santhali.
Oh. In 1962, Budhni was sacked from Damodar Valley Corporation कि तुम यहाँ काम भी नहीं करोगे अब. Rajiv Gandhi became aware of her situation and met her in 1985. Budhni was reinstated to her job and worked until her retirement in 2005. She was never able to return to her village though. Oh no. So yes, she just welcomed. लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको पहना दिया. That meant शादी हो गई. शादी हो गई. That is so risky, yaar. Out of sweetness, he did हाँ. that. Oh no. Okay, so that was a curious case, and the case is now Closed. closed.